चलिए जी, इन लास्ट 3 वीडियोस वी हैव सीन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, सीएसई, योर सीडीएस, सीएपीएफ एंड एनडीए। उसमें से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, उसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 1। बाकी के टॉपिक अपने बच गए हैं। तो इस वाली वीडियो में हम इसकी थ्योरी देखेंगे एंड देन ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या था जी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेजनर। वेजनर साहब ने जो भी एविडेंसेस लिए थे वो कॉन्टिनेंट से लिए थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कुछ एविडेंस दिए जो हमने देखा है, जिगसॉ, सेम एज ऑफ रॉक, टिलेट, प्लेसर डिपॉजिट एंड फॉसिल्स। फिर वेजनर साहब ने बोला कि what forces are governing this continental drift. Hence he said there are two forces, one is pole fleeing force and another is tidal force. अब देखो what does pole fleeing force means. He said pole fleeing मतलब going away from the pole due to rotation of the earth. Everything is going away from the pole towards the equator. That is why he said that most of the continents are at the equator. It was here, then it came down here, 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 and everything is moving towards center. So this is the pole fleeing force. It is not important for us to know what it is. We just have to know the name, because these pole fleeing force and one more force he said, that is your tidal force. That is due to attraction of, this is your earth, this is your moon, and this is your sun. Due to attraction of moon and sun, the continents are pulled towards equator in this fashion. These two forces he said, but these two forces were proven to be false. Hence his evidence was true but forces were false. इसलिए हमारे काम का ये नहीं है। इसमें क्या क्या है, इसमें बहुत कम लिखा हुआ है। पोल फ्लिंग फोर्स, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द पोल. Tidal force, due to attraction of sun and moon, the continents are situated in the vicinity of equator or towards equator they are situated. इस बारे में बात है। तो ये आपका फोर्सेस हो गया, खत्म हुई कहानी। दिस इज डन। अब आते हैं पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय आर्थर होम्स. सो सी, इन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, after the World War II, Arthur Holmes went into ocean floors, and he collected evidence from ocean floor, and then he gave his theory of post-continental drift. So here, Mr. Alfred Wegener said that there is continental drift, continents are drifting, but Arthur Holmes actually gave the reason why it is drifting. So these two together are inventors of continental drift theory. अब देखो आर्थर होम्स ने क्या बोला. He said that there is a system of convection currents in the mantle. अब ये क्यों convection currents होते हैं? So he said that in the mantle there is molten lava या molten rocks. ठीक है? These molten rocks are in the molten state because of radioactivity. हमने चैप्टर में 3 में देखा है. In asthenosphere radioactivity happens. Due to radioactivity, these rocks melt and they move up. When they move up, they become cool and expand. So here it is hot, upper it is cold, hot and cold. This creates movement of currents in the mantle. Because of this movement, a cell is formed. This is convection cell, and due to this cell, these plates move over this cell. So these go up, these go down, energy is created, the plates start to move. So this is what Arthur Holmes said. Just one line he said. ठीक है, इसको देखते हैं अच्छे से क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट लाइन इसमें. देखो जी, पोस्ट स्टडी collection from ocean floor. What he said. Arthur Holmes in 1930s discussed the possibility of convection currents operating in the mantle portion. These currents are generated due to radioactive elements causing the thermal differences in the mantle portion. In the mantle portion, heat is given due to radioactive elements. ठीक है? Holmes argued that there exists a system of such currents in the entire mantle portion, and this was an attempt to provide an explanation to the issue of the force on the basis of which contemporary scientists discarded the continental drift theory. So this continental drift theory given by Alfred Wegener, these two forces, that is your pole fleeing force and tidal force, was discarded after the Arthur Holmes convection current theory. So this was the reason. Now second topic is mapping of the ocean floor. This will be better understood in our chapter number 13. So इसको अभी के लिए इग्नोर करना है, ठीक है. अब देखते हैं थर्ड वाला क्या टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो. ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक ही लाइन है इसमें. देखो बहुत ध्यान से देखना है इस मैप को. इसमें क्या चल रहा है. दिस इज शैलो अर्थक्वेक, ठीक है. दिस इज डीप अर्थक्वेक. तो ये पूरा शैलो अर्थक्वेक का जोन है, ठीक है. ये लाइट, ये डार्क, ये है सब डीप अर्थक्वेक का जोन, ठीक है. अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको अगर डायग्राम याद होगा तो दिस इज अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. यहाँ से डाइवर्जेंस हो रहा है. So in divergence, you will generally see
शैलो अर्थक्वेक जोन, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस है, यहाँ अटलांटिक प्लेट में डाइवर्जेंस है, इंडियन प्लेट कन्वर्जेंस है, यहाँ पे कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, अगेन यहाँ पे कन्वर्जेंस है, यहाँ पे कन्वर्जेंस है। अब जरा उस मैप में देखते हैं, ये देखो डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री, शैलो शैलो शैलो, यहाँ पे शैलो, कंप्लीट शैलो शैलो, यहाँ पे कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, इधर पे कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, यहाँ पे कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, ये भी ट्रांसफॉर्म एंड कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री। सो ऑन द कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री यू आर सीइंग deep earthquake. On the shallow, you are seeing divergence. On the divergence boundary, you are seeing shallow earthquake. अब ये कैसे होता है और ये क्यों हो रहा है? अब देखो ध्यान से, in divergence, the plate is diverging from the upper part of the crust. If the plate is diverging from the upper part of the crust, the force release is near the crust. बहुत beneath, deep में force नहीं release होगा, ऊपर से release होगा. Hence जो earthquake का zone होगा, और I would say the focus of the earthquake, जहाँ से निकलता है या hypocenter of the earthquake, ये यहीं पे होगा, पास होगा। अब आप देखोगे सबडक्शन जोन, दैट इज कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, सबडक्शन में काफ़ी नीचे तक जाता है प्लेट, और उसके यहाँ से रिलीज होना शुरू होगा आपकी एनर्जी, तो इसलिए डीप होता है सबडक्शन जोन में, और जो डाइवर्जेंस है उसमें शैलो होता है अर्थक्वेक। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा इसमें लिख दिया है नोट्स में, तो आप इसको देख लेना कहाँ गया यार। हाँ ये देखो, मिड ओशनिक रिज एक्सपीरियंस शैलो अर्थक्वेक बिकॉज they are divergent boundaries where tectonic stress is released in the uppermost crustal layer as the plates pull apart. Plates ऊपर से दूर दूर जाएंगे तो जो earthquake होगा काफ़ी पास होगा। अब देखिए सबडक्शन जोन में क्या बात है। Subduction plate margins extend deep into the mantle, generating seismic activity at a greater depth. हमने कल ट्रेंचेस वाली भी बात देखी थी, अगर ध्यान हो, कि नीचे की तरफ है ये सबडक्शन है। अब यहाँ पे अगर मूवमेंट होगा तो मूवमेंट यहाँ से शुरू होगा, it will move in like this. If it starts to move in like this, तो यहाँ पे मूवमेंट है प्लेट का, तो यहाँ से अर्थक्वेक शुरू होगा। तो नीचे से मूवमेंट है इसलिए नीचे से, ऊपर से डाइवर्जेंस मूवमेंट है इसलिए शैलो अर्थक्वेक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखते हैं टॉपिक, ये डन। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम भी देखते हैं। अब देखो एक और बंदा आया, हेस, HESS है, एनसीईआरटी में से लिखा हुआ, हेस। ही गेव सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको वेजनर साहब ने दे दी थी, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी आपकी दे दी थी आर्थर होम्स ने, एंड देन हेस ने इसको थोड़ा और फर्दर इलेबोरेट किया और सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी दिया। इसमें 4-5 पॉइंट्स है, उसको जानना है। ही सेड दैट इन द मिड ओशनिक रिज देयर इज वॉल्केनिक इरप्शन। ये मिड ओशनिक रिज है, आप अटलांटिक की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन है। ये एक बात बोली इसने, ठीक है। फिर क्या बोला, ही सेड दैट रॉक्स ऑन द ईदर साइड ऑफ दिस रिज, दिस एंड दिस, शो सिमिलर प्रॉपर्टी इन फॉर्मेशन, इन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इस तरफ के जो रॉक है, अगर ये 10 किलोमीटर इधर जा रहा हूँ मैं और यहाँ 10 किलोमीटर इधर जा रहा हूँ, सो दिस स्ट्रिप ऑफ रॉक एंड दिस स्ट्रिप ऑफ रॉक विल शो केमिकल कॉम्पोजिशन विल बी सिमिलर, देयर फॉर्मेशन विल बी सिमिलर, देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर। ये इसने बात बोली। फिर क्या बोला कि अब बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब इसने एक और बात बोली कि द ओशनिक क्रस्ट आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक इसने ये बात बोली। फिर क्या बोला इसने, अब इसने बोला कि ओशनिक क्रस्ट इज थिनर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो इसने ये बात भी बोली। फिर इसने बोला कि जो डीप ट्रेंचेस हैं वहाँ पे अर्थक्वेक काफ़ी डीप होता है, और जो आपके मिड ओशनिक रिजेस हैं वहाँ पे अर्थक्वेक शैलो होता है। तो 5 पॉइंट बोला, एक एक पॉइंट को अब हम डाइसेक्ट करते हैं। देखो जी, मिड ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज में डाइवर्जेंस प्लेट है, डाइवर्जेंस अगर प्लेट है तो यहाँ पे वॉल्केनिज्म होगा, ये पॉइंट नंबर 1। फिर सेकंड बोला कि इक्वी डिस्टेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द रिज will show similarity in the property of rock formation, chemical composition and magnetic field। क्यों ऐसा है कि देखो जी, ये अपना अर्थ है, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ऐसे ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, यहाँ पे लावा गया, लावा आया, इफ लावा सॉलिडिफाइज इट बिकम्स रॉक, सो यहाँ पे रॉक बन गया। अब देखो हमने चैप्टर नंबर 2 में एक बार देखा था कि आर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ है ना, दैट इज शिफ्टिंग इन दिस फैशन। तो वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट इज देयर। इफ मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट इज देयर, जो भी लावा निकलेगा वो उसी मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन में निकलेगा। सो इफ लावा कम्स आउट एंड देन लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है अभी तो 10.5 डिग्री पे शिफ्ट है, उस समय मैग्नेटिक फील्ड 22.5 इस तरफ शिफ्ट होगा, तो जो अपना नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल होगा वो ऐसे चलेगा। तो जो भी रॉक्स होंगे वो भी इसी ओरिएंटेशन में है, हेंस जो स्ट्रिप्स ऑफ रॉक हैं उनकी सिमिलैरिटी सेम होगी। तो अगर लेट्स सपोज कि 2 मिलियन ईयर्स पे लावा इरप्शन हुआ, तो 2 मिलियन ईयर्स पे होगा तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरीके की, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो गई, तो अब जब रॉक्स निकलेगा
तो इसका ओरिएंटेशन अलग होगा, इसका ओरिएंटेशन अलग होगा. सो द लावा विल इरप्ट एज पर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टाइम ऑफ द अर्थ. ये ध्यान रखने वाली बात है. इसलिए यहाँ का जो रॉक है, यहाँ का रॉक सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी इन दोनों की सेम रहेगी इक्वल डिस्टेंस पे. अब क्या बोला है कि ऑल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड, कुछ देरी से, कुछ दूरी से जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो रॉक्स की चेंज होती रहती है. तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ का होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे साउथ नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, ये सारी बातें हैं. अब क्या बोला है, ये अब यंगर है. अब देखो यहाँ पे फ्रेश लावा निकल रहा है. यहाँ पे अगर फ्रेश लावा आपका निकलेगा तो यहाँ पे जो रॉक्स की एज होगी यंग होगी. जितने दूर जाते हम रहेंगे उतनी रॉक्स की एज ओल्ड होती रहेगी. अब आपको पता है कि मिड ओशनिक रिज से रॉक ऐसे लावा निकला और ये लैंड इस तरफ जिया, इस तरफ जाते गया, ये कहीं ना कहीं सबडक्शन में चला जाएगा. तो जब हम सबसे लास्ट में जाएंगे ना इस बाउंड्री के मिड ओशनिक रिज के, तो हमें जो रॉक्स हैं उसकी एज मैक्सिमम 200 मिलियन ईयर्स मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती. क्यों? क्योंकि जितने भी पुराने रॉक्स थे वो सब अंदर चले गए हैं. इफ दे हैव गॉन इनसाइड, they have recycled and then they have come up again. So this is why your oceanic crust is only 200 million old, whereas your lithospheric crust or continental crust is 3200 million years old. ये बात एक ध्यान रखने वाली है. ठीक है, इसके बाद क्या बोला, अगेन वही सेम कहानी कि डीप जो ट्रेंचेस हैं उसमें जो अर्थक्वेक्स है they will be deeply seated. ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं. क्या बात है, it was realized that all along the mid-oceanic ridge volcanic eruptions are common and they bring huge amount of lava to the surface. सही बात है, लावा निकलेगा. The rocks equidistant on either side of the crest of the mid-oceanic ridge show remarkable similarity in terms of period of formation, क्योंकि एक ही साथ निकले हैं दोनों लावा, एक इधर. Similarity in property, chemical composition and magnetic property. ठीक बात है. Rocks similar to the mid-oceanic ridge have rock closer to the mid-oceanic ridges have normal polarity and are younger. The age of the rock increases as one moves away from the crest. सही बात है. यहाँ पे न्यू लावा आया है तो न्यू रॉक बना है यंगर. ये इस जब यहाँ पे न्यू रॉक बना तो ये इधर की तरफ चला गया, इधर की तरफ गया तो यहाँ ओल्डर रॉक्स मिलेंगे आपको. ठीक है, नॉर्मल पोलैरिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे अभी करंट जो भी पोलैरिटी है ऑफ द अर्थ वो रहेगा, यहाँ पे ओल्ड पोलैरिटी ऑफ द अर्थ रहेगा. इस तरीके से है. फिर क्या आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ, the oceanic crust rocks are much younger than the continental rocks. The age of the rocks in the oceanic crust is nowhere more than 200 million. ये ध्यान रखना है. और वैसे कॉन्टिनेंट्स के 32. अब क्या लिखा है देखो, हाँ, अब थिन वाली एक बात है, यंग एंड थिन. ऑफ कोर्स सही बात है, सेम कहानी है, रिसाइकलिंग होगी. यहाँ पे ऐसे मिड ओशनिक रिज है, यहाँ पे लावा निकला. ठीक है, ये लावा निकल गया, यहाँ पे लावा एक्यूमुलेट हो गया, फिर से आया, फिर से लावा निकला, फिर से एक्यूमुलेट हो गया, फिर से आया, फिर से लावा निकला, एक्यूमुलेट हो गया. सो इफ देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ लावा इट विल बी थिक, बट ऐसा होता नहीं है, थिन है. क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसे डाइवर्जेंस होगा, इमेजिन करो यहाँ से डाइवर्जेंस हुआ, ये नॉर्मल है, यहाँ पे आपका प्लेट, ये लावा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे. अब जैसे डाइवर्जेंस हुआ, सो दिस विल मूव हेयर, दिस विल मूव हेयर, यहाँ ब्लैंक स्पेस होगा, न्यू लावा, न्यू रॉक फॉर्मेशन, एंड हेंस it is not accumulation or rather it is thin and young. एंड जो भी पुराने वाले हैं वो सबडक्ट हो जाएंगे अंदर की तरफ. ये ध्यान रखना है. इस वजह से जो आपका ओशन फ्लोर है इट इज थिन एंड यंग. द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली थिन. साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग इफ द ओशन फ्लोर्स वर एज ओल्ड एज द कॉन्टिनेंट टू हैव अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ मच लॉन्गर ड्यूरेशन. हाउएवर नोवेयर बाय 200 मिलियन. वही सेम कहानी. फिर क्या है, द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक्स occurrences while the mid-oceanic ridges area, mid-oceanic ridges, the quake foci have shallow depth. Again same बात, spreading site होगी, shallow होगी, वो होगा तो आपका convergence site होगी तो deep seated होगी. तो ये simple कहानी है. mid-oceanic ridge eruption, rocks equidistant पे होंगे और उनकी polarity shift होती रहेगी as the earth's polarity shifts. ठीक है, फिर यहाँ क्या बात है कि younger होंगे, यहाँ क्या बात है thinner होगा, और यहाँ क्या बात है अर्थक्वेक की फोकाई की बात है. सिंपल स्टेटमेंट से इसको समझना है, इसको रटना नहीं है, वहाँ नहीं याद रहेगा आपको. आपको बस ये लॉजिक याद रहेंगे क्यों ऐसा हो रहा है. तो एक बार पॉज करना, खुद से रीड करना एंड लॉजिक समझने की कोशिश करना. नहीं समझाए तो कमेंट ज़रूर करना. ठीक है, तो ये अपनी कहानी होगी खत्म. है इसकी बात. हाँ, रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट एंड फोर्स. फोर्स तो वही है, कन्वेक्टिव सेल, ये तो बता दिया कल. रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, बहुत ध्यान से इसको बात को समझना. इमेजिन करो दिस इज नॉर्थ साउथ पोलैरिटी वाला रॉक. ठीक है, दिस इज साउथ नॉर्थ पोलैरिटी वाला रॉक. ठीक है, तो इस चीज़ से, सिंपली इस चीज़ से हम इसका टाइम निकाल सकते हैं, एज.
ठीक है, अब अपने पास टाइम आ गया। हमको पता है मिड ओशनिक रिज से इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस निकाल लिया। सो इफ वी नो द डिस्टेंस, वी नो द टाइम, देन वी कैन नो द स्पीड ऑफ द ये मूवमेंट ऑफ द प्लेट। सो इफ यू नो द टाइम, इफ यू नो द डिस्टेंस, देन हमको स्पीड का पता लगेगा। यही बात इसमें लिखी गई है। ये देखो, रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, द स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट आर पैरेलल इन मिड ओशनिक रिज हेल्प साइंटिस्ट डिटरमाइन द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। एक रीजन नहीं है क्यों है, और अगेन वही इसकी सेम कहानी है कि आपको पता होना चाहिए इस कौन सी एज है इसकी और उसका मिड ओशनिक रिज से डिस्टेंस क्या है, आपके पास स्पीड आ जाएगी। अब इसमें दो और कहानी है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्लोवेस्ट रेट पे कौन मूव कर रहा है, आर्कटिक रिज, ठीक है, ऊपर। अब फास्टेस्ट रेट पे कौन मूव कर रहा है, वेस्ट ऑफ चिली, ईस्टर आइलैंड्स के रिज। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये चिली है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये सबसे तेजी से मूव कर रहा है और सबसे स्लोएस्ट ये मूव कर रहा है। ये दो बातें याद रखनी। चलिए जी, अब कहाँ गए, ये हो गया, 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 ये हो गया। चलो ठीक है, अब जैसे ये खत्म हुआ है, नाउ यू मस्ट रीड दिस चैप्टर ऑन योर ओन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ। एंड इफ यू वांट टू कवर इंटायर फिजिकल ज्योग्राफी इन दिस चैप्टर वाइज PYQ फर्स्ट मेथड, then you can enroll in our course. Again, same story है. Every chapter will be covered through PYQs. PYQs of all these 4 exams. It is applicable for all these 4 exams. Every concept will be taught through reverse engineering of PYQ. Notes and reference book will be given, marked. And सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स सेल कर दिया तो आपसे कनेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा, because there are more doubts in these conceptual subjects. Hence, exclusive Telegram doubt clearing group will also be given to you. If you wish to enroll, you can text me on Telegram or go to the website and purchase the course.